Good morning, everyone. I hope you all been doing good in life and you are staying safe at home and studying hard. First of all, the medium of this video, I just want to congratulate all the aspirants all around the country who have qualified the IBPS clerical and IBPS probationary officer final selection list. Their names have been there. Guys, do well. The only thing is love your job, love your work, and sky will be the limit for you. And secondly, we through our videos been letting you know about the various topics that comes in the competitive examination. Now these virtual classes are not a alternative to online offline classes, but yes, in this pandemic, in this lockdown, we can compensate somewhat of your studies through this mode of study. I just want everyone here that more and more people should see these videos, and these could be of great help to all the aspirants who've been preparing for competitive examinations. Do subscribe our channel on YouTube, Horizon Institute of Competition. And we love your feedbacks in the comment sections so that how more we can be better for you in our topics. So I wish you all a very best of luck. Last lecture of banking and finance, we touched about Indian banking system and the Central Bank of India. And I talked about that Central Bank of India has many roles to do. And one among role is a bigger role called monetary policies. Monetary policies are always a very important topic for competitive examinations, for interview point of view. So we'll be discussing today's about monetary policies, and later on in other classes we'll be taking up other sections too. So I will be taking up that monetary policies is being decided by the Reserve Bank of India, and at least 4 times in a financial year the monetary policy committee sits up and they comes up with the various rates, and if the change is required they do so. The first is called as repo rate. बड़ी सरल भाषा में कि रेपो रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का वो पार्ट है जो कि देश का कमर्शियल बैंक, जो कि आरबीआई है, जिसको आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हो, लेंड करता है देश के कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ऐसी रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं, बिकॉज बैंक्स को भी, कमर्शियल बैंक्स को भी पैसा चाहिए और वो पैसा उनको आरबीआई प्रोवाइड करवाता है, मुहैया कराता है, और उसके बदले कमर्शियल बैंक्स आरबीआई कमर्शियल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। प्रेजेंटली जो रेपो रेट है वो 4.40% के आसपास है। हमारा रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई भी कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करेगा इन कमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री, और वो जो पैसा बोरो करेगा वो अगेंस्ट सम कोलैटरल होगा, वो गवर्नमेंट एंड उसकी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होंगी जो कि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लेगा। So reverse repo rate is the RBI borrows money from the commercial banks within the country against some government approved or collateral securities. इस वक्त जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है वो 3.75% है।
हमारा कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये नेट डिमांड एंड टाइम एंड लाइबिलिटीज के वो पार्ट हैं जो कि बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को अपने पास भी और रिजर्व बैंक के पास भी मैनेज करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। तभी मैंने बोला ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होती हैं। कैश रिजर्व रेशो वो रिजर्व्स हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करने पड़ते हैं और मैंडेटरी मेंटेन करने पड़ते हैं देश के सेंट्रल बैंक के साथ। प्रेजेंटली ये जो कैश रिजर्व रेशो है ये 3% है। उसी तरह से हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है। ये वो कैश रिजर्व्स हैं which the banks have to be maintained with themselves, और ये इस वक्त प्रेजेंटली जो है 18% है। और ये कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या अदर सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस वक्त ये 18% है। आपका बैंक रेट होता है वो लैंडिंग रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी। इट इज 4.65% राइट नाउ। देखिए जी, आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज है, और ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे मैकेनिज्म में चेंजेस, बहुत सारे टूल्स इस तरह से क्रिएट किए गए हैं, और वो सेम चीज बैंक्स पे भी लागू होती है। बहुत सारे बैंक्स हैं आपके कंट्री में। अगर एक बैंक बोलता है कि मैं 4% पे लैंडिंग करूंगा, एक बोलता है मैं 5% पे करूंगा, एक बोलता है जी आप आ जाओ मेरे पास, मैं 2% पे लैंडिंग करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। वो डिफरेंट बैंक्स आपको लुभाएंगे बिजनेस को खींचने के लिए, कस्टमर बेस को जनरेट करने के लिए। उसके लिए हमारे देश में एक मैकेनिज्म है, एक टूल है कॉल्ड बेस रेट, मिनिमम रेट दैट हैज बीन सेट अप बाय द आरबीआई, बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डू लेंडिंग। बैंक्स कस्टमर को उस बेंचमार्क के नीचे, वो एक बेंचमार्क आरबीआई ने डिसाइड कर दिया, उसके नीचे जाके बैंक्स लेंडिंग नहीं कर सकते। इसको हम बेस रेट कहते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जी, ओएमओ, कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए, ये वो एक्टिविटी है आरबीआई की, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी लाना और लिक्विडिटी को स्क्यूज करना, इस सेटअप के थ्रू होता है। आरबीआई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को स्मूदन करने के लिए और मार्केट से लिक्विडिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज करती है। अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया, दिस इज टू बी डन टू पुश द लिक्विडिटी इन द मार्केट। मार्केट में पैसा आए, लोग खर्चें, दुकानदारों के पास पैसा हो, लोगों के पास पैसा हो, मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी की सेल भी करता है। अगर परचेज करता है तो सेल भी करता है। तभी मैंने बोला ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल करेगा, इसका मतलब वो मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है तो इसका मतलब वो लिक्विडिटी को मार्केट में पुश कर रहा है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए. We were talking about these monetary policies and these rates. हमारे पास एक LAF होता है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ये ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो ऑप्शंस हैं. ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए तो that is being done under liquidity adjustment facility. कमर्शियल बैंक्स RBI से पैसा ले सकते हैं ओवरनाइट के लिए. और आजकल ये जो टर्म रेपो है इसका ज्यादा प्रयोग हो रहा है. ये नई एक टर्मिनोलॉजी है. इसका मतलब दैट लिक्विडिटी एनहांस्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपको बतानी थी. एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है. ये फैसिलिटी अंडर विच जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं दे कैन बोरो सम एडिशनल मनी ओवरनाइट फ्रॉम RBI. लेट सपोज एक बैंक ने लेंडिंग करनी है दैट रिक्वायर्स मनी, उसको पैसा चाहिए, उसने लेंडिंग कर दिया. अब लेंडिंग डिपेंड करती है आपके कासा पे भी. आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आपके पास डिपॉजिट्स कितना है. ऐसा है नहीं कि आपके पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, चालू खाता और बचत खाता में पैसा नहीं आ रहा, आप लेंडिंग कर ही जा रहे. क्योंकि अगर आपके पास लेट सपोज पैसा नहीं है, एक टाइम बैंक के पास पैसा नहीं है और सुबह आपके पास 400 करोड़ या 500 करोड़, लेट सपोज 100 करोड़ की आपने लेंडिंग करनी है. सो आप RBI की इस विंडो में एक दिन पहले अपनी रिक्वेस्ट डालोगे और ओवरनाइट के लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एडिशनल अमाउंट देता है. और ये ओवरनाइट के लिए होता है क्योंकि ऑफ कोर्स कल के दिन जब आपका बैंक खुलेगा, आपका सेटअप खुलेगा, आपके पास पैसा भी आएगा, सेविंग्स अकाउंट में भी, करंट अकाउंट में भी. सो मोबिलाइजेशन ऑफ मनी रहेगी. लेकिन बाय द टाइम आपको जो लेंडिंग करनी है उस लेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इस मैकेनिज्म के थ्रू, इस टूल के थ्रू आप ओवरनाइट पैसा RBI से ले सकते हैं. देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए आप लोग अगर इसको अपनी अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को एक बार पढ़ें, समझें, तो ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी. और हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको इसको और अच्छे तरीके से इसको समझाएं. आगे RBI एज अ बैंकर टू बैंकर है, बैंकर टू गवर्नमेंट है, फॉरेक्स रिजर्व मैनेज करता है. ये सब चीजें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. अभी जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई आप थोड़ा इस पे वर्कआउट कीजिए. और कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए. I'll definitely will revert back to you. So guys, wishing you very best of luck. With this I just wind up this today's note. Thank you so much. Stay safe guys.